गुजरात के वडोदरा में सेंट्रल जेल के कर्मचारियों के स्वास्थ्य हित में प्रकृति प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। एक कदम स्वस्थ भारत की ओर अंतर्गत भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पूरे देश में प्रकृति प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आयोजन वडोदरा के सेंट्रल जेल में भी किया गया। जेल में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य हित में यह कैंप आयोजित किया गया, जिसमें जेल में काम करने वाले कर्मचारी के स्वास्थ्य की जांच की गई। અમે આજે વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે ખૂબ જ મોટા પાયા ઉપર મેગા કેમ્પ એટલે કે પ્રકૃતિ પરીક્ષણ અભિયાન જે આપણા ભારત સરકાર માનનીય લાડીલા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 26મી નવેમ્બરથી 25મી ડિસેમ્બર સુધી એક મહિના દરમિયાન ખૂબ જ વાંચતે એમણે જે આ અભિયાન શરૂ કરેલું છે તે નિમિત્તે અમે લોકોને મોટી સંખ્યામાં ફાયદો મળે તે માટે અત્રે ઉપસ્થિત અમારા ઇન્ટર્ન ડોક્ટરની ટીમ સાથે અમે હાજર છીએ। મિત્રો, હું આપને જણાવવા માંગીશ કે પ્રકૃતિ પરીક્ષણ શું છે। તો એ ફ્યુચરમાં તમારા ડિસીઝનું ડિટેક્ટ કરી અને પ્રિવેન્શન કરશે। પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર। આયુર્વેદ એના જ માટે છે। આજે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી દેશમાં અને વિદેશમાં આયુર્વેદનો પાયો ખૂબ જ મજબૂત કરવા માંગે છે, તો આપણે સૌએ ફાળો આપવો જોઈએ। આયુર્વેદની અંદર 3 પ્રકૃતિ બતાડી છે, વાયુ, પિત્ત અને કફ। તો એ 3માંથી કોઈ પણ એક અથવા 2 અથવા 3 પ્રકૃતિ આપણા શરીરમાં હોઈ શકે છે। તો આપણો કોઠો કેવો છે તે આપણે જાણશું, તો એને રિલેટેડ આપણે ઋતુ પ્રમાણે આહાર વિહારનું પાલન કરી શકશું અને જે વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સ થાય છે અથવા ફ્યુચરમાં ડાયાબિટીસ છે, બીપી થવું અથવા કોલેસ્ટ્રોલ થવું અથવા હૃદયની અલગ અલગ બીમારીઓ થવી કે આર્થરાઇટિસ થવું, એ બધાથી આપણને પ્રિવેન્શન મળી રહે છે। પ્રોગ્રામ ગોઠવવાનો છે એમાં તો એ ફાયદો એ છે કે લોકોને એડવાન્સમાં કઈ રીતે પોતાની સારવાર મળી રહે અને અમારો સ્ટાફ જે છે કાયમ બીજી રહેતો હોય એને બહાર જવામાં આ તકલીફ નથી, પણ જો આ કેમ્પમાં અમારે જેલના કેમ્પની અંદર યોજાયો તો બધાને માટે બહુ સારામાં સારું છે અને બહુ આના પછી જે કંઈ નવા કંઈ પ્રોગ્રામ હશે ને એ આજનો પ્રોગ્રામ રાખતા છે તો અમે એનામાં ઉપયોગ કરવા માંગીએ। આ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના જેલ સ્ટાફના કમ્પાઉન્ડમાં રાખેલ છે, એ તમામ પરિવારને આ બધો લાભ મળે। गुजरात मॉडल की पोल खोलती हुई एक और घटना विश्व के 8वें अजूबे स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सामने आई है, जो गुजरात के विकास को शर्मसार करती है। गुजरात में विश्व का सबसे ऊंचा सरदार पटेल का स्टैचू बनाया गया है, जिसे विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है। यहाँ देश विदेश के हजारों सैलानी रोजाना स्टैचू देखने आते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी निकट के चौपड़ गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है जो गुजरात मॉडल पर सवाल उठाती है। विकसित भारत और विकसित गुजरात की बातों के बीच सड़क के अभाव में आदिवासी महिला को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो गई और इस बीच सड़क पर ही महिला को अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। पक्की सड़क नहीं होने से कच्ची सड़क से महिला को झोली बनाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से आदिवासी महिला ने बीच रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक चातर वसावा ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा है। आज नर्मदा जिल्लाना गरुडेश्वर तालुकाना ચોપાડ ગામે એક મહિલાને પ્રસૂતિની પીડા ઉપડે છે। ગામમાં રસ્તાની સુવિધા ન હોવાના કારણે ત્યાં એમ્બ્યુલન્સ પણ પહોંચી શકતી નથી કે કોઈ આરોગ્યનો સ્ટાફ પણ પહોંચી શકતો નથી। ત્યારે ગામના લોકો આ પ્રસૂતિ પીડાતી મહિલાને ઝોલીમાં ઉચકીને પગદંડી લઈને જાય છે। ત્યારે રસ્તામાં જ આ મહિલાનો પ્રસૂતિ થાય છે અને બાળકને મહિલા જન્મ આપે છે। ત્યારે દેશમાં ગુજરાત મોડલની મોટી મોટી વાત કરનારી આ ભાજપની સરકારને આ ખબર પડવી જોઈએ કે આદિવાસી વિસ્તારોની આ વરવી વાસ્તવિકતા છે। જ્યાં તમે 3000 કરોડની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રતિમા બનાવી છે, એ જ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રતિમાથી 10 કિલોમીટરનું આ ગામ છે। આજે પણ આ વિસ્તારોમાં શિક્ષણ હોય, સિંચાઈ હોય, આરોગ્ય હોય, પીવાના પાણી હોય, રોજગાર હોય। જ્યારે દેશ આઝાદ થઈને આજે 10 કે 20 વર્ષ નહીં પણ 78 વર્ષ થયા છતાં આ વિસ્તારની પરિસ્થિતિ આ છે। ત્યારે સરકારે આ વરવી વાસ્તવિકતા સ્વીકારવી જોઈએ અને આ વિસ્તારોમાં શાળા, રોડ, રસ્તા બને અને જે પણ લોકો આમાં જવાબદાર હોય એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી અમે માંગ કરીએ છીએ। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ।
बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में फिर एक बार चंदन का पेड़ चोरी होने की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी है, जहां कई सारे चंदन के पेड़ हैं, लेकिन चंदन के इन पेड़ की चोरी भी कई बार होती रहती है। MS यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस के पीछे चंदन का पेड़ काटकर तस्करों ने चंदन की फिर एक बार चोरी कर ली है। MS यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड और विजिलेंस होने के बावजूद कई बार रात के अंधेरे में चंदन की लकड़ी की चोरी हो जाती है, जो काफी महंगी मानी जाती है। ऐसे मामले में ठोस कार्रवाई जरूरी है। गुजरात के सूरत के जहांगीरपुरा में 10 साल के मासूम बच्चे के गले फांसी खा लेने से हड़कंप मच गया है। सूरत के जहांगीरपुरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के मासूम केतन को अपने घर के पंखे पर लटका हुआ पाया गया। सिर्फ 4 फीट की ऊंचाई वाले केतन ने 7 फीट ऊपर चढ़कर कैसे फांसी लगा ली, उस पर अब कई सारे तर्क वितर्क चल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई के साथ पतंग और डोर मामले झगड़ा होने के बाद केतन ने यह कदम उठाया है। केतन के पिता और माता मजदूर हैं और मजदूरी कर 4 बच्चों का परिवार चला रहे हैं। जब माता पिता खेत मजदूरी पर गए थे, उस वक्त केतन ने यह कदम उठाया, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है। ये छोकरो पतंग लायो, पतंग किन्ना बांधी ने
પછી દોરી માંગવા ગયો ભાઈ હારે નાનલા ભાઈએ દોરી નહીં આપી તેમાં આવું થઈ ગયું. અચાનક એ ફાંસો ખાઈ ગયો. પછી એક મારી નાની છોકરી છે 3 વર્ષની બાળ મંદિર જવા હારું ગયેલી હતી. અંદર ડબ્બો લેવા ગઈ. ડબ્બો લેવા ગઈ એટલે પેલા ભાઈને લટકેલો છે બોજુમાં ભાગી. ભાઈ લટકી ગયા એમ કીધું. એટલે બાજુવાળી અમારી પ્રેગ્નેન્ટ બાઈ છે એમને કઈ છોડાવ્યો કાપીને પેલું દોરડું બાંધેલું હતું છે. पिछले कई सालों से चर्चा में रहे एक देश एक चुनाव बिल को अब आने वाले कुछ सालों में लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसमें कहा गया है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद में बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव लागू कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो यह 2029 से ही लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे।